ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم مختلف معاملات سے متعلق انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ہم تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں، کبھی ہم صحت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ کل ہی ہم نے بات کی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان سے متعلق۔ ہم نے بتا دیا کہ وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ملک میں کوششیں جاری ہیں۔ وکست بھارت کے ساتھ ایک اور شبد کو جوڑا گیا ہے جس کو سشکت پریوار کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ 17 اپریل 2025 کو مدھیہ پردیش میں ماننیہ پردھان منتری نے اس پروگرام کی شروعات کی اور یہ پروگرام 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اور اس میں کس طرح کی پیش رفت ہوئی ایک عورت کو کی صحت کا خیال رکھنے کے سلسلے میں ہم نے آلریڈی بتا دیا کہ ملک کے کونے کونے میں بہت سارے کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں اس کی صحت کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت کے حوالے سے جو متعلقہ محکمہ ہے، صحت کا محکمہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوششیں جاری ہے۔ چونکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا ہاسپٹل ہے، ایک ایسا کالج ہے جس کے حد اختیار میں کئی ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس پروگرام کو عملانے کے حوالے سے کس طرح کا کام ہوا، کس طرح کی کارکردگی ہوئی، یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور آغاز میں ہم اپنے مہمانان کو متعارف کرانا چاہیں گے۔ یہاں تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہیں پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی صاحبہ جو ایڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی GMC سری نگر۔ پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی جی، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے پروفیسر اینڈ ڈاکٹر شیمی موانی صاحبہ جو ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجیکل آنکولوجی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر۔ پروفیسر شیمی موانی صاحبہ، آپ کا استقبال ہے دوردرشن کے اسٹوڈیو میں۔ یہاں میرے دائیں جانب تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے ڈاکٹر شبانہ اشرف جی جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن GMC سری نگر۔ ڈاکٹر شبانہ اشرف جی، آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ ان کے رائے جانب تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے نامور سماجی کارکن، انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ اگر ہم خواتین کے حوالے سے، کیئر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، ان کا نام ہے ڈاکٹر مہجبین نبی صاحبہ، آپ کا ویلکم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آغاز میں ہم آپ سے ریئیکشن چاہیں گے پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی صاحبہ، جس طرح سے ابھی بات کی ہم نے کہ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان جو ہے ملک میں باضابطہ اس کی شروعات جو ہے وہ 17 تاریخ سے ہوئی پچھلے مہینے کی، اور دیکھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی اس سے پہلے کہ جو آیوش کا محکمہ ہے انہوں نے کس طرح کی کارکردگی کا اظہار کیا، کس طرح سے انہوں نے خدمات میسر رکھی۔ اور اگر ہم بات کریں گے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، جیسے آپ کا اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی GMC سری نگر کا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے پیشنٹس اس دوران آپ کے پاس آئے ہوں گے، تو کیا کچھ آپ نے دیکھا؟ کیونکہ بہت سارے خدشات دیکھے گئے PCOD کے حوالے سے، انیمیا کے حوالے سے، یا اس کے بغیر بھی۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے جو یہ انیشیٹو ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آغاز میں آپ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے۔ جب ایک گھر کی خاتون صحت مند ہوگی تو تبھی پورا پریوار ہی صحت مند ہو سکتا ہے جی۔ تو کیونکہ بچے کی پہلی نگہداشت، پہلی پرورش، پہلا جو ہے وہ ماں کی ہی گود ہوتی ہے۔ تو ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند گھرانے کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ تو یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی کر رہے ہیں۔ اب جو ہے، جو اس پرٹیکولر پروگرام یا ویکس کی بات رہی، اس میں ایک اویئرنیس جنریشن ان دا جنرل پبلک، جس کے لیے ہم نے کئی کیمپس کیے، ایڈولسنٹ کیمپس کیے، اویئرنیس ریگارڈنگ وہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہم چینج کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے لائف سٹائل کو لے کے، کوئی ویکسینیشنز لے کے، کوئی ریگولر چیک اپس لے کے، جن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں جو مہلک ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں، چاہے وہ انیمیا ہے، چاہے وہ سروائکل کینسر ہے، چاہے PCOD ہے، یا چاہے وہ ایک ریگولر اینڈ پراپر اینٹینیٹل چیک اپس ہیں۔ تو اس پہ ہم نے اویئرنیس کالجز میں بھی کی، ہم نے کچھ کیمپس جو ہے جس میں سب سے بڑا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف SKICC میں ہوا، اس میں بھی شرکت کی، اور اپنے ہاسپٹل میں بھی جو OPD
میں ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ وہ پیشنٹس ہی صرف نہیں ہوتے ہیں, اس ویل میں اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ اویئرنیس جنریٹنگ فلمز, کچھ ٹاکس وغیرہ جو ہم نے کیے. رہی بات ڈیزیز پروفائل, کوئی چینج نہیں ہوگا 15 دنوں میں. ڈیزیز پروفائل جو ہمارا ہے کشمیر کا وہ ہے, اب اس کو ہم کس طرح چینج کریں گے اس کے لیے جو ہمیں کوششیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جی آگے ہم آپ سے ریئیکشن چاہیں گے پروفیسر شمیم مبانی صاحبہ, چونکہ آپ جس طرح سے آپ سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجیکل آنکولوجی کے, اور اگر ہم اس پروگرام کو دیکھیں گے جو منسٹری آف فیملی ویلفیئر نے ترتیب دیا ہے اس میں انہوں نے باضابطہ گائیڈ لائن دی ہے, اس میں اسکریننگ کے حوالے سے کہا گیا ہے, اورل بریسٹ اینڈ سرویکل کینسر کے حوالے سے اس میں رپورٹنگ کی بھی کہا گیا ہے. تو اگر آپ کی ہم بات کریں گے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, ان دنوں میں آپ نے کس طرح کے پیشنٹس کو دیکھا, کیا کچھ لگا آپ کو, کہاں پہ آپ کو لگی کہ نہیں واقعی طور یہ جو پروگرام ہے یہ اس کی افادیت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, آپ کا ریئیکشن؟ یہ پروگرام تھا, اس میں جو اسکریننگ اور اویئرنیس کی بات چل رہی تھی یہ ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن ابھی جو یہ اسپیشلی 15 دن اس کے لیے دیے گئے تھے, اس میں ہم نے بہت سارے پیشنٹس بریسٹ کے دیکھے. سارے پیشنٹس کو کینسر تو نہیں تھا, مختلف پرابلمس تھی, کسی کی کچھ تھی, کسی کی کینسرس ہم نے ریئرلی, اگر ہم نے پیشنٹ 100-200 دیکھے ہوں گے, 10 کینسر ہم نے ڈائگنوز کیے, یعنی کہ 10 مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا جو کہ مس ہو سکتے تھے. ویسے ہی لیں گے ہم نے اورل ایگزامینیشنز, اورل اسکریننگ کری, اس میں بھی ہم نے 500-600 پیشنٹس یہ کرے ہوں گے اسکرین, اور ہم نے 2-3 کینسر ڈیٹیکٹ کرے. یعنی کہ 3 مریض جو کچھ السر لے کے چل رہے تھے, کچھ گھر پہ کچھ اپنا استعمال کر رہے تھے دوا, ان کی ڈیٹیکشن ارلی ہو گئی, تو بینیفٹ تو ہے اس میں بھی. اسکریننگ رہی سروائکل کینسر کی یا اویئرنیس کے لیے, وہ زیادہ گائنی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں. جی ہمارے پاس ویسا کوئی پیشنٹ آیا نہیں, تو شاید وہ گائنی اوبسٹیٹرکس اور گائنی سے ہی. جی آگے آپ کے پاس ہم آنا چاہیں گے ڈاکٹر شبانہ جی. جس طرح سے ہم نے کل بھی پروگرام میں کہا, ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی عورت کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اگر ہم نے ذاتی طور کہا کہ جو جتنے بھی مرض ہیں, چاہے اگر ہم ذہنی پرٹیکولرلی ذہنی مرض کی اگر ہم بات کریں گے, ہم نے آڈینس کو بھی بتا دیا اس کا علاج آپ کے پاس ہے, کیونکہ ایک عورت جب گھر میں رہتی ہے تو اس کو عمل دخل ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے بہت سارے, چاہے اس کا ہسبینڈ ہے یا باقی جتنے بھی ہے. تو اگر ہم بات کریں گے یہ چیز کی ڈائبٹیز کی, اگر ہم بات کریں گے, یہ بھی ہم نے گزارش کی کہ ایک عورت کو آپ ذہنی صحت اس کا ٹھیک رکھے, اس کو پریشانیاں مت دے دیجئے, ڈائبٹیز زیادہ اس کی اور نہیں بڑھے گا. تو کس طرح سے اگر اس پروگرام کی ہم بات کریں گے, کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہوگا, اور کیا کچھ آپ نے دیکھا ان دنوں؟ جی جیسے کہ ڈاکٹر معصومہ میم نے اور ڈاکٹر شمیمہ میم نے آلریڈی بولا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں, یہ چھن گۄڈنِچ لٹہِ کینٛہہ أسۍ کتھ کران. 15 دن میں اوبویسلی وۄنۍ چھُ اَسہِ اکھ دٮ۪ماغس منٛز کتھ آمٕژ کہِ اَسہِ چھِ اویرنیس کرٕنۍ لُکن, ٹھیک ہے. سو یہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ انڈرسٹینڈ کرٕنۍ یہِ کتھ کہِ اکھ فیمیل چھِ آسان پِوٹ, یہ چھِ آسان سُہ پِوٹ ییٚمِس اراؤنڈ سورُے فیملی چھِ نژان. ایک فیمیل اگر بیمار ہوئے گی گھر پہ سو ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے. سو ملٹی ٹاسکنگ میں فیمیلز بڑی ماہر ہوتی ہیں, 10 کام ایک ہی ٹائم کرنا ایک فیمیل کو ہی آتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک فیمیل کو سمجھائیں کہ آپ کو سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے, آپ کو پہلے اپنی ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ جو آتی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس فیمیلز کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جس میں ہمیں انہیں بولنا ہے کہ ان کو ریلائی نہیں کرنا ہے دوسرے لوگوں پہ کہ بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے, ڈائبٹیز, چاہے کوئی بھی بیماری ہو, تو ان کو ایک سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے, ایک سیلف ویلیڈیشن کی ضرورت ہے کہ میرے پہ بہت سارے لوگ چلتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب ہر ایک بچہ ہو, ہسبینڈ ہو, آپ کا ہاسپٹل ہو, ایوری ویئر آج کل فیمیلز بہت زیادہ کام کرتی ہے. سو اس حوالے سے ایک فیمیل کو ایک اویئرنیس دینا کہ آپ نے بلڈ پریشر مانیٹرنگ, آپ نے ڈائبٹیز کی مانیٹرنگ, ایک سمپل بلڈ شوگرز مانیٹر کر. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ gold standard वाला milk cake or just enjoy a glass full. Blend करो strawberry का milkshake. Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ golden richness और दही में पूरी purity. चाय बनाओ या coffee. Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या smoothies, rich खीर या हो दाल मखनी. Make it gold standard with Amul Gold. Amul Gold.
विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। करनी है सुबह मॉर्निंग में, आपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना अपने ब्लड प्रेशर के लिए, तो दिस काइंड ऑफ द अवेयरनेस हम ओपीडीज में दे रहे हैं और थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं इस दिनों से, जो बिकॉज हमारे ओपीडीज में क्या होता है कि हमें अलग मेल एंड फीमेल ओपीडीज होते हैं, ठीक है। सो जो फीमेल्स आती है हम उनको बताते हैं कि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो चीजें हैं, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करना, ब्लड शुगर्स देख लेना, ब्लड प्रेशर का ख्याल रख देना, या फिर कोई भी सिम्टम जिससे आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लमैटिक इशू आपको लगता है कि हो सकता है हेल्थ के बारे में, सो ये अवेयरनेस हमने देने की कोशिश की है। जी डॉक्टर महाजबीन नबी साहिबा, चूंकि आप मारूफ मतलब सभी लोग जानते हैं कि केयर के हवाले से आपने बहुत काम किया, चाहे खवातीन की हम बात करेंगे चाहे हम बच्चों की बात करेंगे, पर्टिकुलरली ये जो इनिशिएटिव लिया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसमें सेहत के हवाले से बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन आ गई कि कौन कौन किन किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है। तो वैसे कि समाजी कारकुन, एक सोशल एक्टिविस्ट, आप इस प्रोग्राम को किस नज़र से देखते हैं, आपका रिएक्शन? हाँ जी, इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात एक ही है कि जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, तो मुझे लगता है कि उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि अगर मेडिकल कैंप्स वहाँ पर ज़्यादा किए जाएं, वहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए इम्पॉसिबल है कि श्रीनगर आकर या किसी भी हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना। जैसे कि अगर किसी का शुगर है तो वो नहीं, मेरे ख्याल में नहीं वो घर में चेक कर सकता है। अगर एक रूटीन के तहत उनके एरियाओं को चुना जाए तो फिर वहां पर मेडिकल कैंप लगाए जाएं, तो मुझे लगता है अगर महीने में 2 ही बार लगेंगे वो कैंप जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, तो मुझे लगता है उनसे उनको काफी बेनिफिट्स होता है। नंबर 2, जो हमारी नारी है जी, जिस पर घर की बुनियाद है, तो उसकी सेहत का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो उतनी मर्द की भी जिम्मेदारी है, उतनी घर की खवातीन की जिम्मेदारी भी, क्योंकि अगर हम अच्छा खाना भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल में हम वो मर्द के लिए रखते हैं या तो बच्चों के लिए रखते हैं। औरत अपना बच्चा कुचा खाना जो है मेरे ख्याल में उसी पर वो गुजारा करती है, जो मेरे ख्याल में अपने आप के साथ वो सबसे बड़ी ज्यादती करती है, क्योंकि अगर वो सेहतमंद है तो पूरा उनका घर सेहतमंद रहेगा। क्योंकि हर एक हालत में एक औरत का तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है उनके पूरे कुंबे के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए। तो मेरी यही डॉक्टर साहिबान से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि फार फ्लंग एरिया जो हमारे हैं तो वहां पर मेडिकल कैंप करने की बहुत जरूरत है, बल्कि अशद जरूरत है वहां पर, क्योंकि उन लोगों की हालत हमने देखी है। हम वहां प्रोग्राम्स करते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हॉस्पिटल जाते भी हैं तो उनको बच्चे साथ होते हैं, किसी का छोटा बच्चा है, किसी को घर में किसी बुजुर्ग को छोड़ना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर उनके लिए कैंप्स लगाए जाए, अवेयरनेस के प्रोग्राम उनके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने भी अभी कहा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसमें। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी हमारे सामने ये बात आ गई कि जो जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज है, इवन ये प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क में चल रहा है, अगर हम देखेंगे इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइन है, इसमें जो मतलब CHCs है, जो सेहत का महकमा है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये प्रोग्राम जारी है। जैसे आयुष्मान के हवाले से हमने बात किया, कल हमने आयुष महकमे के हवाले से बात की, जितने भी उनके सेंटर्स है दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे इनके कैंप्स जारी हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। लेकिन कहना यह है कि इसको आगे भी जारी रखना है, लेकिन किस तरह से हमें ये करना चाहिए, इसका रिएक्शन हम डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी साहब से लेना चाहेंगे। ये जो इन्होंने बात कही कि फार फ्लंग एरिया में ये प्रोग्राम अगर ये 2 तारीख को इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन उसके बाद भी ये जारी रहना चाहिए, तो आप किस नजर से इस चीज? देखिए, ये हम सब की मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए, हमारे फार फ्लंग एरियाज में मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी तैनात होते हैं, हेल्थ एजुकेटर्स भी होते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो घर घर जाके एक डाटा कलेक्ट करें, कहाँ प्रेग्नेंट लेडीज कितनी हैं, एडोलेसेंट चिल्ड्रन कितने हैं, फैमिली प्लानिंग किनको ज़रूरत है, अगर मैं स्पेसिफिकली औरतों के बारे में बात, तो ये जो है ये एक सिस्टम है, वही एक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे आपका मेडिकल एजुकेटर अपना काम करता है, हेल्थ एजुकेटर अपना काम करता है, फिर वो CHC
सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर अगर उनको कोई तकलीफ ऐसे हैं जिनके लिए उनको रेफरल सिस्टम चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रिवेंट, जिनको हम कह सकते हैं प्रिवेंटेबल चीज़ें जो हैं, जैसे हमने वैक्सीन लगाया तो इन्फ्लुएंजा से बच गए। अब अगर हम CS सर्विक्स की बात करें तो अगर हम यंग लड़कियों को एट द एज ऑफ 9 to 15 वैक्सीन लगाएं तो सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हो मैं यहाँ जाएगी। पे रोकना चाहूंगा मैम आपको ये चीज की, जिस तरह से कल हमने जो यहाँ पे निशस्त की जो प्रोग्राम हुआ, जो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ, इन दिनों दो चीजें हमारे सामने आ गई। ये देखा गया कि जो मतलब छोटी एज की लड़कियां हैं, PCODs के हवाले से बहुत सारी शिकायतें जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया वहां पे। क्योंकि अब ये जो दो चीजें हैं, चाहे PCOD की हम बात करेंगे या एनीमिया की बात करेंगे जो अभी ट्रेंडिंग है, अब इसमें बहसियत माहिर जो है हम इनसे भी अभी रिएक्शन लेंगे इस सिलसिले में। तो ये जिम्मेदारी जो है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये जहनी तनाव जो है हमें वो एक इस बच्चे को या इस औरत को घर में नहीं देना है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का बताया कि अनीमिया है यंग एडल्ट्स में या PCOD की जो ये है, ये दोनों चीजें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ये प्रिवेंट टू अ लार्जर एक्सटेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हेल्दी फैमिली का होना, हेल्दी फैमिली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जहां पर तनाव घर में होगा तो बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, खाने पीने की तो बात ही नहीं आती है। तो दूसरी चीज जो डिपेंडेंस हो गई है, मैं माओं की बताऊं, चाहे इवन इन फार फ्लंग एरियाज या इनकी, कि ये जो जंक फूड, चिप्स का पैकेट, आसान तरीका, माओं के लिए भी बच्चों के लिए भी, 10 रुपए थमा दिए जाके चिप्स खा लो लंच के बदले। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। देन हमने अपने हॉस्पिटल में एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि जो औरतें पहली बार प्रेग्नेंट होंगी उनका हीमोग्लोबिन, हमने उनमें भी एक 80% एनीमिया का किया। हम पहले कहते थे कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज, चाइल्ड बर्थ, उनमें जी उन औरतों को अनीमिया की इंसिडेंट, बट हमने देखा ये वर्ल्ड वाइड भी है, हिंदुस्तान में पूरे इसमें है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ 12/12 भी लॉन्च हो गया हिंदुस्तान में। अनीमिया, आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट, गोलियां फ्री अवेलेबल हैं। उसके बावजूद उसके वजूहात भी बहुत सारे हैं कि क्या ये राइट लोगों पर पहुंचता है, फिर ये जो टैबलेट हम सरकारी दे रहे हैं क्या इसमें सही मिकदार में आयरन है या नहीं, सही सॉल्ट है या नहीं है, सही लोगों तक पहुंचता है भी है या नहीं है, क्या जिन लोगों को है उनको एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज है या नहीं। तो PCOD के हवाले से ये अनीमिया की बात हुई। फिर उनका खाना पीना कैसा है, आपने देखा है कि कश्मीर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन ये। तो इकोनॉमी जब शैटर होगी तो घर के खाने पीने पे भी तो असर पड़ेगा ना, तो अनीमिया तो होगा ही। अब उसमें जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी हम प्रेफरेंस देखें, आपने देखा होगा पढ़े लिखे घरों में भी है लड़के को कि अगर दिमो लड़कस को दिमो आकोई। सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको भी खत्म करना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बुनियाद जो है औरत है, उसको हर तरफ से हम टारगेट करते हैं, इकोनॉमिकली भी टारगेट करते हैं, मेंटली भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं। और जो हमारा एक बड़ा बर्डन ऑफ हाफ विडोज एंड डिसअपेयर्ड पीपल है, उनके बच्चे वो तो हर लिहाज से महरूम रह गए, तो उनका खाना पीना भी तो महरूम रह गया, तो एनीमिया हो ही गया। फिर PCOD की बात रही, जो हमने यहाँ देखा, यहाँ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो यंग गर्ल्स में PCOS की जो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बन गया है, स्ट्रेस है। देन लाइफस्टाइल है, एक देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफस्टाइल। पुराने लोग चलते फिरते थे, काम बहुत करते थे, अब हम सिडेंट्री हो गए हैं। इवन जो लोग गाँव वगैरह में काम करते हैं, तिमतिच बिहारन हायर करान अपना खेतों में काम करने के लिए, पहले लोग करते थे, एक्टिव रहते थे, तो उनकी ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होती थी। फिर खाना पीना सादा था, तो ये सारी चीजें हैं। आपकी बात को हम ऑडियंस के पास ले जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी डॉक्टर मासूमा साहिबा ने कहा कि औरत की बुनियाद जो है, घर की बुनियाद जो है वो औरत पर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बारहा कहा है कि हम दुनिया की मखलूक का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं जब तक न हम एक औरत को पूरा सम्मान देंगे, उसको इज्जत दे देंगे और उसको परेशानियों से दूर रखेंगे। लेकिन ये परेशानियों से किस तरह से दूर रख सकते हैं, हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना है, हमें ये देखना है कि आया इसको वाबस्तगी, जिस तरह से अभी कहा गया यहाँ पे कि मतलब इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अभी अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर शमीमा जी, हम अक्सर बेशतर देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसोफेगस CA की बात करेंगे, बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है
کہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے. اب کہیں کہیں انسیڈنٹل فائنڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس پروگرام کو ہم مد نظر رکھیں گے, اگر اس گائیڈ لائن کو ہم آگے پہنچائیں گے, جیسے اسکریننگ کی ہم بات کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام مددگار ثابت ہوگا ان فائنڈنگز میں؟ جی ضرور ہوگا. عام طور پر اسوفیگس پیشنٹ تمس چھُ گنڈ گژھان. اگر بتون پیشنٹ سے گوئی Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ gold standard वाला milk cake और just enjoy a glass full. Blend करो strawberry का milkshake. Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ golden richness और दही में पूरी purity. चाय बनाओ या coffee. Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या smoothies, rich खीर या हो दाल मखनी. Make it gold standard with Amul Gold. Amul दूध पीता है इंडिया. हुजूर, देश में नया पावरफुल कलर कोटेड स्टील आया है. इस कलर कोटेड स्टील में इतनी ताकत है कि वो जंग से जंग करे. जो देख क्या दे दुश्मन को वहाँ मारना है जहाँ प्रोटेक्शन कम हो. यहाँ कटेज में AMNS India presents Optical with the power of magnesium, जो कलर कोटेड स्टील को दे कटेज प्रोटेक्शन और आपके घर को मजबूती और शानदार रंग कई सालों तक. Reimagineering inner strength with Optical. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ gold standard वाला milk cake और just enjoy a glass full. Blend करो strawberry का milkshake. Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ golden richness और दही में पूरी purity. चाय बनाओ या coffee. Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या smoothies, rich खीर या हो दाल मखनी. Make it gold standard with Amul Gold. Amul दूध पीता है इंडिया. देयर इज अ डिनाइल. ना ना गांड छुम ना गसान मैं रुकान. वो इस वर्जन को भी चेंज करता. मैं छुन गांड गसान. इस वर्ड से ही पेशेंट अब डरने लगे. गांड इज नॉट ऑलवेज कैंसर. अमिस मानुन गांड गो अमिस कम सो गई गांड. चे गो ये त्रेश से बत से गो ये चाय से च गो क्या पेशेंट मे बत सी गसान. बहुत चोट खेवान मे तम सम बहुत खेवान फ्रूट मे तम गसान. तो प्रेथ कह गंड कैंसर क्या बे पेशेंटस ये रिपोर्ट कर डॉक्टर्स कि मे गो गंड. अगर हफ्तस मज अक तो 2 लट गंड गो पेशेंटस पज डॉक्टर्स निश गन. यह गि अर्ली डायग्नोज. इसोफेगस पेन ती गना बहुत खेवान मे करान पेन. अगर ये डॉक्टर्स निश ग स्क्रीनिंग एंडोस्कोप करे डायग्नोज अर्ली स्टेज न पे पेशेंटस पे सिर्फ सर्जरी कर न कीमोथेरेपी दिन न रेडिएशन थेरेपी दिन. एंड इट्स अ क्यूरेबल डिजीज. गो स्क्रीनिंग में एंडोस्कोपी. जिस तरह से आपने कहा कि मतलब स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग के हवाले से नाज़रीन मोहतरम यहाँ एक बात ज़रूर सामने आ जाती है कि अक्सर बेशतर पन्ने सेहत के हवाले से वारिया चीर पत हुशार गछान यस इसमें कशर लफ्जन मज वना बस तिकाज कह कह तुथ खुशकिस्मत आसान यमिस अमि दाद के हवाले कुन साथ का इंसिडेंटल फाइंडिंग छ यवान ब्रोह कुन तो पत तमिस गडनिक स्टेजस में ट्रीटमेंट गछान सु छ ठीक गछान. मगर तम पत छ यवान वुछन कि अगर कंसे सेकंड स्टेज आसे के आसे तुम छ पत सु इलाज अडवती त्रावान ये जन के डॉक्टर साहिबान 12 च वनान कि आज पत तम पत फॉलो अप करूं. अब आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे डॉक्टर शबाना जी. ये बताइए कि अभी अगर हम आपने बात की कि जैसे डायबिटीज की आपने बात की, अभी आपने ये कहा कि नज अमिस रेस्पॉन्सिबिलिटी अमिस लेडी वारिया गरस मजन तो अमिस यमो परेशानियों निश दबाव निश ज़हनी निश दूर थावने खतर क्या करना चाहिए? आपका रिएक्शन. सबसे पहले फीमेल को मे बसान कि वैलिडेशन जरूरत क्या दमिस कि मे वन ब्या सह ठीक तो अदी छस बह ठीक. ये गोद पान समझुन एजुकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर एक फीमेल को समझना है कि पहले एजुकेटेड होना है. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे उसको अपनी वर्थ पता चलती है कि बह कुता मे कुछ वैल्यू गोड गस पानस वैल्यू तरन फिक्र अति बाकी तरह फिक्र. तो तम खतर एजुकेशन वारिया इम्पॉर्टेंट आसान. हमने क्या वुचमुत यथ मज गसान सनिस कश्मीरस मज एटलीस्ट वन बह श्रीनगरस मज फीमेल्स वारिया एजुकेटेड आसान. तिम PhD ते करान. पत युथी तिमन सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ गसान स्टार्ट युथी तिमन खानदर सनान करितन तिमन सह एक्सेप्टेंसी आसान तिहंज एजुकेशन. तिमन वना ऐ यूता पोर्मुत हमको बॉदर नहीं करता है, हमको आपको ये काम करना है. बस यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे नाजरीन. ये बात जो अभी इन्होंने कही है आप तक हम पहुंचाना चाहिए. जिस तरह हमने 12 कहा है कि ये साथ ये
तवल्लुद सपदान च यम साथ ये कूर जवान च हज आत गरस मज युस माहौल अम साथ तरी सपदान च हज खुशी च सपदान हज कुन कुन जाय च के खदशात यवान लेकिन आम तौर यम साथ वुचान अस वोन अमि ब्रोह ज कायनातुक तसव्वुर हेको न करितन योतान ब्रोह कुन ये खातून आसि. तो ये चीज हमने देखना है कि अगर वह आत गरस मज ये बच जाओ ये कूर पाल आए पत ये आख एज अमिस आसान अमिस पेवान बेस गरस मज गसन. हमने इससे पहले भी ये बारहा कहा है. और इसके बाद जो है अगर इस तकलीफ वुचो परेशानी वुचो यम क्या खानद्र पते वुचान अत क्या रीजन्स युस यह माहौल अमिस अत अत माहौलस मज अमिस सेहतिक यम जन खदशात सारी ब्रोह कुन यवान यम क्या तकलीफ यवान आफ्टर मैरिज क्या वन आव कि एक्सेप्टेंस तमिक इशू मा कह वन अगर यमन प्रोग्रामन में काउंसलिंग करें. अब अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे डॉक्टर महजबीन नबी साहिबा. इस प्रोग्राम में ये भी कहा गया कि जहनी सेहत के हवाले से हमने क्या करना है, हमने काउंसलिंग करनी है. लेकिन काउंसलिंग ज्यादातर जो आम हम देखते हैं ये काउंसलिंग करते हैं इन खवातीन को. लेकिन हम जो है मेरा जाती तौर जो एक इसमें राय है, जब प्रोग्राम का आगाज हुआ उससे पहले भी हमने निशस्त किया, हमने उस सिलसिले में भी कहा कि नहीं हमने इस खातून को काउंसलिंग नहीं करनी है, हमने इसके अफराद खाना को काउंसलिंग करनी है जहां पे ये रहती है. तो इस सिलसिले में आपका क्या रिएक्शन, क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए हमें सबसे पहले एक सोच अपने दिमाग में बिठानी है कि एक खानदान को हम इकट्ठा कर नहीं सकते समझाने के लिए जी. इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ही बात बोली कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है. ये अवेयरनेस हम ना कैमरा के सामने कर सकते हैं ना हम किसी ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि हमें हर जगह पर कैंपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये श्रीनगर की बात है, मेन सिटी की बात नहीं है. आप दूर दराज गांव में जाकर देखिए, यहां पर तो कुछ भी नहीं है. आप देखिए डोमेस्टिक Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल. लैंकारो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक. Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी. चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, विच खीर या हो दाल मखनी, Make it gold standard with Amul Gold. अमूल दूध पीता है. वायलेंस कहां से स्टार्ट होता है? छोटी सी बात पे चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे नानी देवरानी हो, तो यहां से उस लेडी की सेहत भी इफेक्टेड हो जाती है. हम कहते हैं कि एक लेडी को माने एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं, ससुराल में जाकर उसके सारे, जैसे पुराने जमाने में हम एक बात बोलते थे, जब शादी होती है तो सारा कुछ घर पे ही पड़ जाता है. तो वो सच बात है कि उसकी सारी एजुकेशन, उसकी सारी एक्सपीरियंस वो उसको घर में ही रह जाती है, उसको दूसरे माहौल में जाना पड़ता है. वहां पर उसका हस्बैंड सबसे बड़ा साथी होता है. इसी में आपका आखिरी मैसेज भी हमें चाहिए जो अभी आप बता रहे हैं हस्बैंड के हवाले से, तो किस तरह का आपका आखिरी मैसेज इसमें होगा, फिर हम आगे चलेंगे. जी, मेरा आखिरी मैसेज होगा कि अगर एक लेडी को अपना हस्बैंड साथ देता है तो वो दुनिया की हर जंग जीत सकती है. जी. नॉट ओनली मेरे ख्याल से हर एक फैमिली मेंबर को एकजुट होकर अंडरस्टैंड करें कि पूरी फैमिली तो जुट ये कोई आलादी नहीं है कि हर कोई काम कर देगी. इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, हर एक फीमेल को सपोर्ट की जरूरत. सपोर्ट के बगैर वो ज्यादा आगे नहीं जा मानते हैं कि अगर हम इस अगर आप कितनी भी एजुकेटेड हो, आपको सपोर्ट नहीं है, हमें इस सिलसिले में आपका मैसेज चाहिए कि अगर हम इस खातून को, इस औरत को घर में एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे, इसको खुश रखेंगे, इसको जहनी इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो ये जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं किसी हद तक हम इसको काबू कर सकते हैं. आखिर पर एक मैसेज इस सिलसिले में आपका. नहीं, ये चीजें तो कभी जेनेटिक भी होती है, इसमें जीन्स का भी होता है कि आपको डायबिटीज हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, लेकिन हाँ स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जिससे बहुत सारी चीजें एग्रीवेट हो सकती है. स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर चढ़ सकता है ज्यादा, स्ट्रेस से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल लेवल्स भी अच्छी नहीं रह सकती हैं, स्ट्रेस से आप इनफैक्ट दिस इज द अर्ली स्टेज कि आपको डिप्रेशन जब होता है सबसे पहले एंजाइटी होती है. ठीक है, तो मेजर इलनेसेस जो होती है, इनफैक्ट हम रिसेंटली डिमेंशिया के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेस इज अ फैक्टर. सो ऑब्वियसली ये तो बोलने की बात ही नहीं है, स्ट्रेस तो उसको देना ही नहीं. हर एक इंसान को ये समझना है कि आई हैव टू गिव अ शेयर इन ईच एंड एवरी वर्क दैट वी डू एट होम.
देखिए जब हम outside. बात करेंगे बहुत सारी तादाद ऐसी है जिसमें जैसे आपने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के हवाले से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो है जैसे आपने अभी कहा किसी को मतलब ये विरासत में मिलता है, उसके बाप को होता है, किसी और को होता है, लेकिन बहुत सारी तादाद इसमें ऐसी भी है जो अभी रूल आउट ही नहीं होता है कि इसमें ब्लड प्रेशर अगर है तो रीजन क्या है, कहीं कहीं पे डिप्रेशन भी होता है। तो आपके पास हम बढ़ना चाहेंगे। एक आपको ये यहाँ पर इंटरवीन करना चाहती हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि सोच बदलना, वी नीड टू फॉलो, मुझे नहीं लगता कोई रिलीजन आपको औरत पे जुल्म करने का हुक्म देता है। और अगर आप इस्लाम की बात करें तो एक वो मकाम दिया गया है औरत को जो सबसे ऊंचा है, जो जन्नत की खवातीन में सबसे आला हजरत फातिमा है। वो मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े होते थे। वो इसलिए नहीं कि वो उनकी बेटी थी, इसलिए वो कायनात को ये दिखाना चाहते थे कि औरत का मकाम क्या है। उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये मर्दों की दुनिया जो है इसको हमें बदलना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि एक औरत को उसकी सही जगह मिले। आप अगर देखेंगे इस वक्त, बिकॉज आई डील विद सो मेनी वुमेन, और उस क्लास ऑफ द वुमेन के साथ जो बीच वाले तबके के हैं, लोअर तबके के हैं, उनके स्ट्रगल्स जब आप देखते हैं तो उन्हें 10 बीमारियों के लिए जगह बन जाती है, क्योंकि उनके पार्टनर सपोर्टिव नहीं होते हैं, उनके इन लॉज उनको सिर्फ एक काम करने की मशीन समझ रखते हैं, फिर उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी पड़ती है। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं। इन लेडी ही तो ये नहीं होती है, मर्द भी कई जगह पर डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो ये उनके लिए भी तंबे हैं कि एक बिल्कुल, ये दोनों के लिए। मैरिज इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ तो दोनों, लाइफ तो दोनों तरफ से चलनी चाहिए। रुतबा दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये एक बहुत सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, मगर जब दोनों लोग इसको समझें, क्योंकि यही है जो प्रोजनी को आगे करेगी, इसलिए इसमें काम करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर आपसे शमीमा जी, आप की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से मैसेज ये है कि अगर आप आजकल हमारी ओपीडी देखेंगे उसमें कैंसर रेट फीमेल्स में ज्यादा है। वी गेट मोर ऑफ फीमेल्स, लेस मेल्स। And for dementia also we get more एक of सवाल females. जिम्मन, हालांकि मैसेज है, क्या आप लेट इसमें देखते हैं कि मतलब ये रिपोर्ट लेट करते हैं ये पेशेंट्स आपके पास लेट पहुंचते? एक सोशल स्टिग्मा है, दे कम लेट। और हमारे पास वो स्क्रीनिंग एवेन्यूज भी देखिए ना, आप वेस्ट में ये एक पॉइंट है, फीमेल्स वी गेट मोर फीमेल कैंसर्स नाउ, लेस मेल कैंसर्स। आप देखिए वहां पर तो बना हुआ है, आपका डाटा है, जो मैं इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, वो इसीलिए है। देयर इज अ डाटा, यू विल गेट अ फोन कॉल कि भाई आज आपका स्क्रीनिंग, आज आपके लिपिड्स का डेट ये करना है, आज आपको कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मेयर लेना है, आज आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। वी डोंट हैव दैट सिस्टम। तो एक सिस्टम फेलियर को भी तो आप देख लीजिए ना, हर पेशेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया, मतलब जो अभी 15 दिन का है, ताकि आगे भी इसका फॉलोअप रहेगा। मकसद इसका यही है कि स्क्रीनिंग की जाए, मकसद इसका यही है कि इन औरतों को देखा जाए, मकसद इसका यही है कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे जाए, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा डॉक्टर महजबीन साहिबा ने। तो आदाद-ओ-शुमार हमें आ जाएंगे कि कहाँ पे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कितने की स्क्रीनिंग हुई, कितने के इस तरह के केसेस हैं। लेकिन स्टिग्मा की बात आपने बिल्कुल सही कही कि लेट कहा जाता है, लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए। घर में जितने भी अफराद खाना है उनको क्या करना चाहिए? अगर आपकी औरत घर में बोलती है कि हमारी सेहत ठीक नहीं है, आप उसको फरामोश मत कीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान इग्नोर करते हैं। इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर वो बीमार भी होगी, मर्द बीमार होगा, 10 लोग, औरत बीमार होगी, उसको उठना है। ये हर लेवल, इट इज नॉट कि ये बस आपकी ही बात लेके फिर जाएंगे नाज़रीन के पास। ये जरूर कहेंगे कि जब ये औरत आपके घर में बीमार हो जाती है, तब जब आपको शाम का खाना वक्त पे मुयसर नहीं होता है, तब आपको इस औरत की कदर कीमत जो है, इसकी कदर मंजिलत जो है, वो आपको समझ में आती है। डॉक्टर महजबीन नबी साहिबा, दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, इतनी मसरूफियात के बावजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना अशरफ जी, आप यहाँ पे आए, आपने दूरदर्शन न्यूज को कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर एंड डॉक्टर शमीमा वानी साहिबा, आपने सीए के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, आपने बिल्कुल एक रिलीजियस तरीके से हमें समझाया औरत की अहमियत, औरत की अफादियत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, खुसूसी तौर हम आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह साहिबा का, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएमसी मोहम्मद हक्का पे लाया। लेकिन एक दफ़ा फिर चलते चलते आपसे यही मौदबाना इल्तिमास करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि आप औरत का सम्मान कीजिए,
آپ کا بھی सम्मान होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।